गुड मॉर्निंग टू ऑल द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आज के इस परवाज़ सेशन में हम आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। हमारे आज के परवाज़ सेशन का थीम एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर है और पिछले सेशंस की तरह हमारा आज का सेशन भी 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेशन के पहले हिस्से में हम अपने थीम से रिलेटेड नज़में और नगमे गाएंगे और कहानियाँ सुनेंगे। सेशन के दूसरे हिस्से में हम पेरेंट और बच्चों को अपने थीम से रिलेटेड कुछ सरगर्मियाँ करने का मौका फराहम करेंगे और सेशन के आखिरी हिस्से में हम अपने थीम से रिलेटेड की मैसेजेस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए अब हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ सूरह फातिहा की तिलावत से करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप तमाम मुकम्मल एहतराम के साथ सूरह फातिहा की तिलावत में शामिल होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। आइए अब हम अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ेंगे। पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों के हाथ में तस्बीह दें और अल्लाह के नाम का वर्द करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। अब वक्त हुआ है आप तमाम को बाकायदा तौर पर खुश आमदीद कहने का। सोनी सुबह मुबारक, सोनी सुबह मुबारक, सोनी सुबह मुबारक। त्वड़ा की हाल है, त्वड़ा की हाल आ, त्वड़ा की हाल आ, त्वड़ा की हाल आ, त्वड़ा की हाल आ, त्वड़ा की हाल आ। जी, तो आज हमने आपको खुश आमदीद किस ज़बान में किया? जी हाँ, ये पंजाबी ज़बान है। आइए मिस, अब हम अपने सेशन के फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और अपने थीम से रिलेटेड कुछ मज़ेदार सी नगमे और नज़में गुनगुनाते हैं। हमारी पहली नज़म है दोस्ती की नज़म। तो हम सब तैयार हैं? जी हाँ। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, है यही तुमसे कहना। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता। Let's sing another song in English now. Share, share, share your toys, share with everyone. It's so much fun to share your toys, sharing has no end. Share, share, share your toys, share with everyone. It's so much fun to share your toys, sharing has no end. Today I am going to tell you a story about the rainbow fish. The author of the story is Marcus Pfister. The story is about the fish who lived in the ocean, and all the other fish used to call it
Rainbow fish. You know why? Because it has shiny, glittery scales on him. So everybody used to call rainbow fish the rainbow fish because she was the most beautiful fish in the ocean. One day the little fish asked rainbow fish, can you guess what did she ask? She asked for the rainbow fish shiny scale. Do you think rainbow fish is going to share her shiny scale with her, with the little pink fish? Rainbow fish got very upset. I cannot share my shiny scale with you. Who do you think you are? These are my shiny scale, which make me beautiful. The little fish got very upset and they got away from rainbow fish. They never ever played with rainbow fish. Now, rainbow fish, the most beautiful fish of the ocean, became the loneliest fish in the ocean. She was very upset because nobody wanted to play with her. Rainbow fish spoke the same to starfish. She said to starfish, nobody wants to play with me, and I'm the loneliest fish. Starfish said, I don't know the answer of this, but down in the cave you will find a wise octopus, and wise octopus might suggest you what to do. The rainbow fish went to the dark cave, and there she found an octopus, the wise octopus. Octopus said, I was waiting for you because the waves have told me your story. If you want to become the happiest fish again, you have to share your shiny, glittery scales with your friends. Rainbow fish was surprised. How can I share my scales with anyone? But octopus was not there. It disappeared. Rainbow fish was thinking about it, and suddenly she saw her friend's back. She thought that if I'll give one of my smallest scale to my friend, I may not miss anything. So she shared the smallest scale with all of his friends. Those small fishes got very happy and they said, you are the kindest and the beautiful rainbow fish. The rainbow fish was surprised to hear this all about herself. She said, really? You think this way? Now rainbow fish gave all her scales to her friends, and she was left with only 2 shiny scales. Did you see? She has got now friends with her. The rainbow fish was not the beautiful fish in the ocean, but she was the happiest fish in the ocean because she has got her friends around. Did you know how did she get happy now? Because she started to share. And this is the message that when you share, you become happy. Choo, 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 choo. मिस, ये किसकी आवाज आ रही है? मुझे तो किसी चूजे की आवाज आ रही है। जी हाँ, तो अब हम जिस नज़म को गुनगुनाने वाले हैं वो चूजे से मुतल्लिक है। क्या आप नन्हे से चूजे से मिलना चाहेंगे? चले आए, हम आपको नन्हे से चूजे से मिलाते हैं। चू 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 चू, ये रहा नन्हा सा चूजा। आइए हम सब मिलकर इस नन्हे से चूजे की नज़म गुनगुनाते हैं। चू 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 चू। मैं नन्हा सा चूजा हूँ, अंडे में से निकला हूँ। चू 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 चू।
मैं नन्हा सा चूजा हूँ, अंडे में से निकला हूँ। मुर्गी मेरी अम्मी है, मैं अम्मी का चूजा हूँ। चू 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 चू। मैं नन्हा सा चूजा हूँ, अंडे में से निकला हूँ। मुर्गे मेरे अब्बू हैं, मैं अब्बू का चूजा हूँ। चू 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 चू। Let's sing an interesting song. और इस सॉन्ग के लिए हमारी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को अपने सामने बिठाएं और उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर इस नज़म को गुनगुनाएं। आइए हम मिलकर उस सॉन्ग को गाते हैं। Round and round the garden like a teddy bear. Round and round the garden like a teddy bear. One step, two step, tickle you under there. Round and round the haystack went the little mouse. Round and round the haystack went the little mouse. One step, two step, in his little house. One step, two step, in his little house. अब वक्त हुआ है एक मज़ेदार सी किताब पढ़ने का। तो आप सब तैयार हैं? आइए मैं आपको किताब का सरवक दिखाती हूँ। जी, किताब के सरवक पर आपको क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, मुख्तलिफ तरह के हाथ। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ हल्के भूरे रंग के हैं, कुछ गहरे भूरे रंग के हैं। कुछ हाथों में ब्रेसलेट भी पहनी हुई है। भाई, इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का उन्वान है हाथ मारने के लिए नहीं है। हाथ मारने के लिए नहीं है तो फिर हाथ किस लिए है? आइए हम किताब में उसको देखते हैं। हाथ मारने के लिए नहीं है तो सवालिया निशान है, कोई हमसे पूछ रहा है। आइए इसका जवाब देखते हैं। हाथ मुख्तलिफ रंग, अशकाल और साइजेस के होते हैं। हाथ किस लिए है? कुछ समझ आया आपको? जी हाँ, हाथ खुश आमदीद कहने के लिए है। हाथ दांत साफ करने के लिए है। हाथ धोने के लिए भी है। जी हाँ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जानवरों को हाथ लगाने के बाद, छींकने के बाद। जी हाँ, हाथ धोने चाहिए। और हाथ खाना खाने के लिए हैं। आइए देखें और हाथ किस लिए हैं। हाथ पौधे लगाने के लिए हैं। हाथ मारने के लिए नहीं है। हाथ किस लिए है? चले देखते हैं। हाथ लिखने के लिए है। हाथ पढ़ने के लिए है। हाथ माला बनाने के लिए भी है। जी हाँ, रंग बिरंगी माला बनाने के लिए। और हाथ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी है। जी हाँ, गांव में, शहरों में लोग मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और हाथ खेलने के लिए है। जी हाँ, आप सबको खेलना पसंद है ना? चले हम देखते हैं और हाथ किस लिए है। हाथ मारने के लिए नहीं है। फिर हाथ किस लिए है?
फिर से कोई सवाल पूछ रहा है हमसे। और हाथ किस लिए हैं? हाथ तो दुआ मांगने के लिए हैं। जी हाँ, आप सब दुआ मांगते हैं अपने हाथों से। चले आंटी को बताएं कैसे आप हाथ उठाते हैं। जी हाँ, हाथ दुआ मांगने के लिए हैं। हाथ तोहफे देने के लिए हैं। हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को तोहफे दे सकते हैं। और हाथ सफाई करने के लिए भी है। जी हाँ, हम अपने हाथों से सफाई कर कर अपने अम्मी अब्बू की मदद कर सकते हैं। और हाथ जानवरों का ख्याल रखने के लिए है। हाथ अलविदा कहने के लिए है। अलविदा। और हमारी किताब खत्म हो चुकी है। ये किताब का आखिरी सफ़ा है। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। अलविदा। आप सबने हाथों के मुतालिक स्टोरी पढ़ी और आप लोग सबको अच्छी भी लगी। आइए अब हम एक सॉन्ग गाएंगे जो हाथों से मुतालिक है। तो रेडी हैं सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे दो है हाथ, छोटे छोटे से है हाथ, रहते हैं ये मेरे साथ साथ साथ। आओ ये दुआ करे इनसे काम जो करे, अच्छे काम हो और अच्छा हो अंजाम। मेरी तो है आंखें, प्यारी प्यारी सी है आंखें, रहती है ये मेरे साथ साथ साथ। आओ ये दुआ करे इनसे जो हम देखें, अच्छा हो, अच्छे काम हो और अच्छा हो अंजाम। मेरे दो हैं कान, छोटे छोटे से हैं कान, रहते हैं ये मेरे साथ साथ साथ। आओ ये दुआ करे इनसे हम जो सुने, अच्छी बात हो और अल्लाह की हो बात। अभी हम एक पैटर्न एक्टिविटी करेंगे। पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के साथ वही एक्शंस दोहराएं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पैटर्न एक्टिविटी हम 3 मरतबा दोहराएंगे। क्लैप टैप, क्लैप टैप, क्लैप टैप। अभी इसी एक्टिविटी को हम थोड़ा सा बदल कर करेंगे। क्लैप क्लैप टैप। तो आइए हम 3 मरतबा इसको दोहराते हैं। क्लैप क्लैप टैप, क्लैप क्लैप टैप, क्लैप क्लैप टैप। इसी पैटर्न को हम शेकर्स की मदद से करेंगे। पेरेंट्स से गुजारिश है कि इस एक्टिविटी को भी 3 मरतबा दोहराएं। स्टार्ट। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। अब हम इस को डिफरेंट पैटर्न में करेंगे। शेक शेक स्टॉप। लेट्स स्टार्ट। Shake, stop. Shake, stop. Shake, stop. ओके मिस, ये क्या जगह है? ये एक फार्म है। किसका फार्म? ये ओल्ड मैकडॉनल्ड्स का फार्म है। ओह, और आपको पता है, ओल्ड मैकडॉनल्ड्स के फार्म में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। अच्छा जी, तो आइए हम मिलकर ओल्ड मैकडॉनल्ड्स का गाना गुनगुनाते हैं। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here quack, there quack, everywhere quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some cats, E-I-E-I-O. With a meow meow here and a meow meow there, here meow, there meow, everywhere meow meow. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a baba here and a baba there, here ba, there ba, everywhere baba. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, E-I-E-I-O. अब हम अपने सेशन के
दूसरे और मुनफरिद हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी टाइम, जिसका मकसद आप वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना है। सेशन के इस हिस्से में हम आपसे अपने थीम से मुतल्लिक एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे, जिनका ताल्लुक बच्चों के डिफरेंट डेवलपमेंटल डोमेन से है। इन एक्टिविटीज़ को हम आपके साथ 2 एज ग्रुप्स के हवाले से शेयर करेंगे। फर्स्ट एज ग्रुप में हम आपसे 6 to 18 मंथ से रिलेटेड बच्चों की एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे और सेकेंड फेज़ में हम 19 to 36 मंथ्स के बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे। तो आइए हम अपनी पहली एक्टिविटी जो कि 6 to 18 मंथ्स की है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम अपने बच्चों को एक बास्केट जिसमें कई किताबें हों वो दिखा सकते हैं और बच्चों से किताबें सेलेक्ट करने का मौका दे सकते हैं। किताबें सेलेक्ट करने से, चूज़ करने से, उनका इंतखाब खुद करने से बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। किताबें जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, तो उसे पढ़ाते वक्त हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, बच्चों को अपने से करीब बिठाएं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें अपनी गोद में बिठाएं ताकि बच्चे महफूज महसूस कर सकें। किताबें पढ़ाते वक्त बच्चों को किताबें बहुत करीब से दिखाएं ताकि उसमें मौजूद तस्वीर, किरदार और अल्फाज को बच्चे बआसानी देख सकें। आप किताबें पढ़ाते वक्त ज़बान के उतार चढ़ाव, चेहरे के उतार चढ़ाव का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह करने से बच्चे का इंटरेस्ट किताबें पढ़ने की तरफ डेवलप होगा। आप बच्चों से किताबों के मुतालिक सवालात भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको किताब में क्या नज़र आ रहा है, ये किरदार या ये परिंदा क्या कर रहा है। इस तरह के सवालात छोटे बच्चे तो उनका जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप सवालात पूछेंगे और आप खुद ही उसका जवाब देंगे। और अगर बच्चे जवाबन आपके सामने लाला, टाटा, बाबा ऐसी आवाज़ें निकालते हैं तो आप जवाबन उन आवाज़ों को निकालें ताकि बच्चा ये महसूस कर सके कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसे वालिदैन जो किताबें नहीं पढ़ सकते, उन्हें मायूस नहीं होना। उन्हें तस्वीर की मदद से अपने बच्चों को किताबें पढ़कर सुनानी है, कहानियाँ पढ़कर सुनानी है, ताकि बच्चों को ऐसा महसूस हो कि उनके वालिदैन उनके साथ किताबें पढ़ने का अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कॉग्निटिव डोमेन से मुतल्लिक। इस डोमेन से मुतल्लिक हम जो एक्टिविटी करेंगे उसमें हम 3 मुख्तलिफ तरह के या 4 मुख्तलिफ तरह की बॉटल्स ले सकते हैं और हर बॉटल में एक मुख्तलिफ तरह की चीज़, जैसे कि पहली बॉटल में आप चावल, दूसरी बॉटल में चीनी और तीसरी बोतल में गेहूँ या शक्कर के कुछ दाने भर सकते हैं। आप इसे बच्चों को सुनाएं कि देखें ये किसकी आवाज़ आ रही है। आपको क्या लग रहा है, ये बहुत तेज़ आवाज़ है या हल्की आवाज़ है। इस तरह से तीनों बॉटल्स को बच्चों से एक्सप्लोर कराएं ताकि बच्चा ये महसूस कर सके कि हर चीज़ की एक मुख्तलिफ आवाज़ है। अगर आपका बच्चा बॉटल पकड़ने के काबिल है तो आप उसे वो हाथ में दें ताकि आपका बच्चा उसे खुद शेक कर सके, खुद हिला सके और आवाज़ें निकाल सके। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है सोशल एंड इमोशनल डोमेन से मुतल्लिक। जैसा कि नाम से ही वाकिफ़ है कि इस एक्टिविटी में हम बच्चों की सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो इस डोमेन के लिए आप बच्चों को कोई भी खिलौना या घर में मौजूद कोई भी चीज़ बच्चे के सामने रख सकते हैं और बच्चे से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ क्या आप ये मुझे उठा कर दे सकते हैं। और जब आपका बच्चा आपको वो चीज़ उठा कर दे तो आप जवाबन उसका शुक्रिया अदा करें। आप कहें थैंक यू सो वेरी मच, आई एम सो ग्लैड कि आपने मुझे ये चीज़ रिटर्न कर दी या आपने मुझे ये चीज़ ला कर दी। इस तरह से बच्चे को ये समझ आएगा कि हमें घर में किस तरह से दूसरों की मदद करनी है। फिर यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल गोइंग एज में आते हैं, तो वो अपने दूसरे बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ़िज़िकल डेवलपमेंट डोमेन की जानिब। इस डोमेन में जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 मेजर स्किल्स को कवर करेंगे,
फिजिकल फाइन मोटर एंड फिजिकल ग्रॉस मोटर। तो सबसे पहले हम फिजिकल फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फिजिकल फाइन मोटर का ताल्लुक चूँकि छोटे मसल से है, तो हम बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं कि हमने बॉटल्स दी बच्चों को, 1 बॉटल, आप 2 बॉटल्स भी दे सकते हैं। बच्चे को इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो इसके अंदर कोई भी खिलौना या घर में मौजूद कोई भी चीज़ इस बॉटल में रखे और इसका कैप, इसका ढक्कन भी बंद करे। ऐसा करने से बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी और साथ ही साथ बच्चों को ये पता चलेगा कि हमें चीज़ों को जगह पे रखना है। जब बच्चा अच्छी तरह से ये एक्टिविटीज़ को अंजाम दे तो आप बच्चों को अप्रिशिएट करें, उन्हें कहें थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाइंडिंग द बॉटल, आई एम सो ग्लैड कि आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे जुमले कहने से बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो घर के कामों में, डेली रूटीन में ना सिर्फ वालिदैन की बल्कि दूसरे दोस्तों की, बहन भाइयों की भी मदद कर सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट एक्टिविटी जिसका ताल्लुक है फिजिकल ग्रॉस मोटर से रिलेटेड। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको अपने घर में मौजूद किसी भी बड़े कार्टन या बड़े बॉक्स का इंतखाब करना होगा और उसे 2 तरफ से खुला रखना होगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो बॉक्स। जी हाँ, आप इस तरह का कोई भी कार्टन बॉक्स ले सकते हैं। इसे सिर्फ दो तरफ से खोलें और बच्चे को इसमें से गुजरने का मौका दें। आप बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए यहाँ से एक तरफ से कोई चीज़ शेक कर सकते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर बच्चा उस चीज़ की जानिब मुतवज्जा हो, और जैसे ही बच्चा इस बॉक्स को पार कर ले तो आप उसको अप्रिशिएट करें। इस एक्टिविटी को बच्चा जितनी देर तक करना चाहे आप उसे करने दें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये सरगर्मी आपकी सुपरविज़न में होनी चाहिए। इस एक्टिविटी को करवाते वक्त हम बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं आपको 19 to 36 मंथ्स की एक्टिविटीज़ बताऊंगी। 19 to 36 मंथ्स की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम बच्चों को बहुत सारी किताबें दिखा सकते हैं, जिसमें से हम बच्चों को वैरायटी ऑफ बुक्स में से उनको सेलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। जो भी बच्चा चाहे वो बुक उठाए अपनी चॉइस की, और फिर पेरेंट्स उस बुक के बारे में उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे सवालात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो इस तस्वीर में क्या देख सकते हैं। बच्चों से सिंपल सवालात करें कि आप इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं, आपको कहीं क्या फूल नज़र आ रहे हैं, और अगर ये बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है। इस तरह के सवालात से उनकी इमेजिनेशन और उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हम एक बेयर्स पार्टी करेंगे। बेयर्स पार्टी के लिए हम उनके लिए एक दस्तरखान बिछाएंगे और बच्चों के साथ पेरेंट्स उनकी मदद करें ये बिछाने में। शायद वो स्ट्रेट ना बिछा सकें, तो आज हमारी बेयर्स की पार्टी हो रही है। और बेयर्स को हम क्या खिलाएंगे पार्टी में? ओहो, हम उनका पहले दस्तरखान लगाएंगे। उनको हमारे पास यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास यहाँ कप्स हैं, तो हर बेयर को एक एक कप मिलेगा। इस तरह से बच्चों की मदद से हम उनमें कप्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से हर बेयर को इक्वल बोल्स और प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों की मदद से। इस तरह से बच्चे जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। इस तरह से बच्चों को पता चलेगा कि पार्टी में सब जो है वो इंटरेक्शन करते हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम सिखा रहे हैं बच्चों को। जब ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चे जो है ये सारी चीज़ों को वाइंड अप भी खुद ही करें और वो सारी चीज़ें जगहों पर वापस रखें। जैसे हमने निकाली थी वैसे ही उनसे कहें कि वो वापस उन सारी चीज़ों को वापस अपनी जगहों पर रख दें, ताकि इससे बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीखें।
पेरेंट्स इसमें उनकी मदद कर सकते हैं ताकि बच्चों को जो है और रीइंफोर्स करे ये सारी बातें कि वो जो है वो क्या कर रहे हैं, ये दे आर वाइंडिंग इट अप। फॉर फिजिकल डेवलपमेंट हम बच्चों को क्रॉस मोटर के लिए हम उनको बॉल्स दे सकते हैं। बॉल्स उनकी तरफ फेंक कर उन्हें कैच करने के लिए और या किक बैक करने के लिए कह सकते हैं। ये उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ हमारे पास साउंड जार्स हैं। ये साउंड जार जो है वो एक एक साउंड उनकी है। बड़े बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है इनकी पेयरिंग कर सकें। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि बच्चों से हम इनकी पेयरिंग कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम बच्चों को ये बजा कर दिखाएंगे। उनसे आप कहें इज़ इट लाउड, और ये इसकी आवाज़ तेज़ है या हल्की। इसका मैचिंग जार कहाँ है, इनको मैचिंग करने के लिए कहीं जो जार एक जैसी आवाज़ रखते हैं उनकी मैचिंग की जाएगी। ये उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक्टिविटी है। फिर से वाइंडिंग अप हम उनको सिखाएंगे कि ये चीज़ें जगह पर रखें। फॉर फाइन मोटर स्किल हम बच्चों को, चूँकि हमने हाथ की स्टोरी भी सुनाई है, हम उनको हैंड ट्रेसिंग करवाएंगे। और जब वो हैंड ट्रेसिंग कर रहे हों हम उन्हें बताएं कि इन हाथों से हम क्या करते हैं। वो जो कहानी हमने पहले पढ़ी थी उसके बारे में बात करें कि हाथ किस लिए हैं, हमारे हाथ क्या काम करने के लिए बनाए गए हैं, और मुख्तलिफ रंगों से उनको जो है इनकरेज करें कि वो ट्रेस करें अपने हाथों को। अगर उनको कहीं मुश्किल आ रही है तो पेरेंट्स इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से उनकी फाइन मोटर, इनके छोटे मसल्स की जो है वो डेवलपमेंट होगी। हमारे हाथ किस लिए हैं। तमाम एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ वाइंडिंग अप भी करें ताकि बच्चे ऑर्गेनाइज्ड हों और सीखें कि सारी तमाम चीज़ें जो है वो हमें अपनी जगह पर रखनी होती है। वापस रखते सारी चीज़ें, जहाँ से उठाई वहीं पे रख दें। It's Anchal time, which means we are very close to the end of our session. हम पिछले तमाम परवास सेशंस की तरह अपने आज के परवास सेशन को भी आंचल टाइम से कंक्लूड करेंगे ताकि बच्चे प्रोटेक्टिव महसूस कर सकें और वो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बआसानी तैयार हो सकें। तो आइए अब हम अपने आंचल का सॉन्ग गुनगुनाते हैं। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 आँखें दी, अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 आँखें दी, इन आँखों से मैंने तेरी सारी दुनिया देख ली, इन आँखों से मैंने तेरी सारी दुनिया देख ली। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 कान दिए, अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 कान दिए, इन कानों से मैंने तेरे सारे गीत सुन लिए, इन कानों से मैंने तेरे सारे गीत सुन लिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 हाथ दिए, अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 हाथ दिए, इन हाथों से मैंने तेरे सारे काम कर लिए, इन हाथों से मैंने तेरे सारे काम कर लिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 पैर दिए, अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 पैर दिए, इन पैरों से मैंने तेरी सारी दुनिया घूम ली, इन पैरों से मैंने तेरी सारी दुनिया घूम ली। अल्लाह तेरा शुक्रिया।
अब हम अपने सेशन के आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, की मैसेजेस। जैसा कि हमने आपको सेशन के आगाज़ में बताया था कि हमारे आज के सेशन का थीम एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर है। इस थीम से मुतल्लिक हम 2 अहम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें से पहला नुक्ता ये होगा कि आखिर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। इस बड़े से टॉपिक में कौन कौन से छोटे छोटे से टॉपिक्स कवर होते हैं, और दूसरे हिस्से में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं ताकि बच्चे सोशल और एथिकली रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकें। जब हम कहते हैं कि एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एज अ पेरेंट, हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आखिर हम इतने बड़े कॉन्सेप्ट को अपने बच्चों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं? इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि जब वालिदैन ये सोचते हैं कि उनका बच्चा सोशली और एथिकली अच्छा बिहेव कर रहा है, तो वो क्या करेगा असल में? इसका मतलब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरों का ख्याल रखें, चाहे वो ख़ानदान में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, वो हर जगह दूसरों का ख्याल रखे। वो अपनी बारी का इंतज़ार करे। घर में खाने के दौरान, बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ खेलते वक्त वो अपनी बारी का इंतज़ार करे। वो दूसरों की कंपनी को इंजॉय करे। वो अपने बहन भाइयों की कंपनी को, वो अपने रिश्तेदारों की कंपनी को और वो अपने दोस्तों की कंपनी को एंजॉय करे। वो रूल्स को फॉलो करे। जी हाँ, हर घर में, हर माहौल में, स्कूल में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। हम में से हर पेरेंट ये चाहेगा कि हमारा बच्चा उन रूल्स को फॉलो करे। हम ये भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा दोस्त बनाने में पहल करे। वो घर में, स्कूल में और अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करे। इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा अपने गुस्से को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके। उसे ये समझ आ जाए कि कभी मूड ख़राब है या उदास है या परेशानी में है या गुस्से में है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का, उसके इजहार का एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका उसे आए। साथ ही साथ हमारा बच्चा किस तरह से अपनी फीलिंग्स को पुरअसर तरीके से दूसरों तक कम्युनिकेट कर सकता है। तो जब हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स को कंक्लूड करें, सम अप करें, तो ये बच्चों की मदद करती हैं एक एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप करने में। अब इन बातों को, इन कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को समझाने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात हम सबको समझने की ज़रूरत है कि बच्चा इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को वक्त के साथ साथ सीखेगा। ठीक है, जिस तरह से हम जब पौधा लगाते हैं तो पहले दिन ही हम बड़े दरख्त की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। जिस तरह से एक दरख्त को बढ़ने में वक्त लगता है, इसी तरह से बच्चों को भी इन कॉन्सेप्ट्स को, इन स्किल्स को, इन एटीट्यूड्स को अपने अंदर डेवलप करने के लिए वक्त की ज़रूरत है। तो हम बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ बच्चों की मदद करेंगे ताकि वो अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबल, एक एथिकली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप कर सकें। वालिदैन अपने बच्चों की मदद किस तरह से कर सकते हैं, इस बात को समझने के लिए हम 3 अहम की मैसेजेस पर बातचीत करेंगे, जिसमें से पहला की मैसेज ये है कि चिल्ड्रन नीड क्वालिटी रिलायबल रिलेशनशिप्स विथ केयरिंग एडल्ट्स। जी हाँ, बच्चों को उनसे बड़ी उम्र के, उनके घर वालों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ बहुत ही मज़बूत ताल्लुक़ की ज़रूरत है। फिर ही वो अपने अंदर उन तमाम क्वालिटीज़ को, उन तमाम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जिसकी हमने सेशन के शुरू में बातचीत की। अब वालिदैन और उनके साथ जो घर में रहते हैं, वो बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं? जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप उनको वक्त दें, उनकी बात गौर से सुनें। अगर वो आपको इशारों की मदद से कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसकी तरफ मुतवज्जा हों, क्योंकि छोटे बच्चे अल्फाज का
बड़े बड़े जुमलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर पेरेंट्स या जो भी केयर गिवर्स हैं वो उस वक्त अगर बच्चों की अटेंशन को एड्रेस नहीं करते हैं तो उससे बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं। तो वालिदैन को सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी बच्चे की नीड हो, जब भी उससे आपकी ज़रूरत हो, आप उसे रिस्पॉन्स करें। आप उसके साथ जब बातचीत करें तो उसकी आंखों में आंखें देखकर बातचीत करें। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बच्चे के लिए ये बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो ये कोशिश करें कि जो मुख्तलिफ़ एहसासात हैं, जो मुख्तलिफ़ जज़्बात हैं, उनको नाम देने की कोशिश करें। जैसे आज आप खुश हैं, आज आप उदास हैं, मुझे मुझे ये अंदाज़ा है कि मेरे जाने से आप बहुत उदास हो गए हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। इस तरह की कॉन्वर्सेशन करने से बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि ये तमाम एहसासात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल है और हम इसे बआसानी कम्युनिकेशन के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा घर में जब आप अपने बच्चों के साथ खेलें या बहन भाई आपस में खेल रहे हों तो आप कोशिश करें कि बच्चे टर्न टेकिंग्स को फॉलो करें। पहले आप खेलें फिर बच्चे की बारी है, या पहले बड़े भाई ने खेला फिर छोटे भाई की बारी है, या पहले बड़ी बहन की टर्न है फिर छोटी बहन की टर्न है, और वाइस वर्सा। इस तरह से जब हम टर्न टेकिंग्स की गेम्स को बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों के अंदर ना सिर्फ पेशेंस डेवलप होता है बल्कि वो रूल्स को फॉलो करने की भी आदी हो जाते हैं, जिसकी हमने सेशन के शुरू में बात की थी। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड की मैसेज की तरफ, which says children learn socialization skills within family first and then with others including peers। जी हाँ, बच्चे सोशलाइजेशन की स्किल्स को पहले अपने घर में सीखते हैं और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते हैं या उनसे सीखते हैं। अब सोशलाइजेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए पेरेंट्स और केयर गिवर्स बच्चों की किस तरह से मदद कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने घर में कुछ नॉर्म सेट करें, कुछ बाउंड्रीज सेट करें। बच्चे को ये मालूम हो कि उसे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। हम बहुत छोटे बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम वर्ड नो ना कहें क्योंकि उससे उनकी ज़हन में बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी काम से बच्चे को रोकना चाहें तो आप वो काम बताएं जो बच्चे से आप चाहते हैं कि वो करे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा खेल रहा है और वो कुर्सी पर चढ़ गया है और आप चाहते हैं कि वो कुर्सी पर ना चढ़े, तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि कुर्सी पर मत चढ़ो, आप ये कहें कि मुझे खुशी होगी कि आप ज़मीन पर खेलें। मुझे उस वक्त अच्छा लगता है जब आप नीचे खेलते हैं क्योंकि कुर्सी पर चढ़ने से हमें चोट लग सकती है। तो उसी बात को आप पॉजिटिव तरीके से बच्चों को बताएं, लेकिन बच्चे को ये पता हो कि अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं किसी चीज़ के लिए जो आप उन्हें नहीं देना चाहते, तो उमूमन पेरेंट्स जब बच्चे बहुत रोते हैं तो वो थक हार कर वो चीज़ उन्हें दे देते हैं। तो उससे बच्चे ने क्या सीखा कि जब मैं रोऊंगा, जब मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। तो बच्चे ने एक गलत कॉन्सेप्ट को अपने अंदर डेवलप कर लिया। अगर आपने एक मर्तबा किसी चीज़ के लिए नो कह दिया, इसका मतलब वो नो है। तो आप बहुत सोच समझ कर जिन चीज़ों के लिए नो कहना चाहते हैं नो कहें और फिर आप उस बात पर स्टिक रहें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने घर में बच्चों का एक डेली रूटीन सेट करें, क्योंकि डेली रूटीन बच्चे की पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे क्रैंकी, उदास इसलिए होते हैं कभी कभी क्योंकि उन्हें अपनी रूटीन की इससे आगाही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि अब नेक्स्ट काम उनके पास क्या आने वाला है। तो कोशिश करें कि घर में एक बच्चे का जो रूटीन है वो सेट हो। बच्चे को मालूम हो कि मुझे सुबह उठने के बाद दांत साफ़ करने हैं या मुंह धोना है या घर में सबको सलाम करना है, उसके बाद हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर अम्मी ऑफिस चली जाती हैं या अम्मी घर में खाना बनाती है। तो इस तरह की डेली रूटीन अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप होगा और वो इजीली एंटिसिपेट कर सकेगा कि अब अगली सरगर्मी कौन सी आने वाली है। इसके अलावा हम जिस भी काम का बच्चे को हुक्म दें या जिस भी काम की एक्सपेक्टेशन बच्चों से रखें वो हमें पहले खुद कर कर दिखानी है। जी हाँ, हमें मॉडलिंग करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा काम से मोहब्बत करे
तो हमें भी काम से मोहब्बत करनी है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि अगर कभी फैमिली में कोई बाहर से आया है और आप उससे अपने काम की शिकायत करते हैं कि आज तो मैं अपना काम करके बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत बेजारियत हो गई, तो इनडायरेक्टली आप बच्चों को काम से मोहब्बत नहीं सिखा रहे, हम बच्चों को ये इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं कि काम करना असल में तकलीफ़ का बाइस है। तो हम कोशिश करें, हम जो भी बात कहें, हम कहते हैं दांत साफ़ करना है सुबह भी रात भी, तो हम भी बच्चों के साथ मिलकर करें। इस तरह की हर बात में जब आप बच्चों को मॉडल कर कर दिखाएंगे तो बच्चों को ये लगेगा कि अच्छा, घर के हर अफराद इसी प्रैक्टिस में हैं, तो मुझे भी इसी तरह के एटीट्यूड्स को, इसी तरह की रूटीन को डेवलप करना है। सेशन के थर्ड की मैसेज जिसका ताल्लुक मॉरल डेवलपमेंट से है, एंड मॉरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द रूल्स दैट पीपल हैव फॉर देयर इंटरेक्शंस विद अदर्स। जी हाँ, इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात किस तरह से इस्तवार करते हैं, हमारा रवैया दूसरों की तरफ किस तरह का है, चाहे वो परेशानी के माहौल हो, चाहे वो खुशगवार लम्हात हो, दोनों सिचुएशंस में हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। इस की मैसेज को, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए वालिदैन क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनकी प्रेजिंग करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। अगर छोटी सी उन्होंने मदद की है आपकी, तो आप कहें थैंक यू सो वेरी मच, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपका एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आ रहा है, तो आप उसे भी अप्रिशिएट करें। तो प्रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होती है। नेक्स्ट, छोटे बच्चे कभी बहुत ज़िद कर रहे हों या बहुत परेशान कर रहे हो, तो उस वक्त वालिदैन क्या कर सकते हैं? कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, हम बहुत चीख जाते हैं, चिल्लाते हैं, उससे बच्चे के अंदर नेगेटिव कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं। तो इसकी बजाय वालिदैन और केयरगिवर्स बच्चों की अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा किसी खिलौने के लिए ज़िद कर रहा है, तो हो सकता है आप बच्चे से कहें कि क्यों ना हम किताबें पढ़ें, या आओ हम बाहर जाकर बैल्कनी में, एक गैलरी में देखते हैं कि हमें कौन कौन से परिंदे नज़र आ रहे हैं। जब हम बच्चों की अटेंशन डाइवर्ट करते हैं तो बच्चा अपने इमोशन को ईजीली मैनेज कर सकता है, चैनलाइज कर सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे अपने दूसरे बच्चों के साथ जो घर में हैं, जो मोहल्ले में हैं, स्कूल में हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करें। जी हाँ, और फ्रेंडशिप करने के लिए आप फ्रेंडशिप की बुक्स बना सकते हैं। बच्चों के साथ छोटी सी किताब लें, उसमें अपने फैमिली मेम्बर्स के, उनके फ्रेंड्स की पिक्चर्स या उनके फ्रेंड्स के नाम, बच्चों से कह सकते हैं कि क्यों ना आप अपने फ्रेंड की पिक्चर बनाएं और मम्मा आपके लिए उसका नाम लिख देती है। हो सकता है बच्चे बहुत क्लियर पिक्चर्स ना बनाएं, लेकिन वो जो भी बनाए आप उसे अप्रिशिएट करें। आप कहें अच्छा, ये सर्कल आप रिप्रेजेंट कर रहा है उनके किसी फ्रेंड को, तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि अच्छा, ये आपके दोस्त हैं, क्या है उनका नाम, और आप उनका नाम नीचे लिख सकते हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है और इस तरह की कई दूसरी एक्टिविटीज़ है जिनके ज़रिए हम बच्चों को ये मैसेज दे सकते हैं, ये सीखने में उनकी मदद कर सकते हैं कि हमें किस तरह से एथिकली दूसरों के साथ बिहेव करना है। सो आई होप हमने अपने की मैसेजेस में अपने थीम को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अब वक्त हुआ है अल्लाह हाफिज़ का। अल्लाह हाफिज़ ऑल द पेरेंट्स, Allah Hafiz all the parents. We hope to see you soon. We hope to see you soon. Allah Hafiz everyone. आप आज के हमारे इस सेशन को दी स्माइली पाकिस्तान की YouTube चैनल पे बआसानी देख सकते हैं, और फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए और मुनफरिद टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।